getting you visuals now from a Bayraktar drone from the Ukrainian armed forces. You can see the visuals on your screen. The Ukrainian military, they're attacking the Russian electronic warfare systems. Ukraine forces stepping up its attack against Russia, according to the latest visuals being put out by them from the Bayraktar drone, where Ukrainian military can be seen attacking the Russian electronic warfare systems at this point in time, because today is day 17 and Russia is closing in on the capital city of Kiev. Ukraine stepping up its attack, its Bayraktar drone there on your screens, hitting back at the Russian electronic warfare systems. Yes, Priyanka. Well, definitely, Crispino, we do see these visuals from across Ukraine now coming in more rapidly, because we had seen just a few minutes back how the Russian armed troops, in fact, had been making their way towards Kiev, and we were hearing that one final attack is something that Russia is also planning to carry out in Kiev, in only 25 kilometers away from the capital of Ukraine. We had seen multiple reports how Russian troops are encircling the capital of Ukraine, and on the backdrop of that, we do see the kind of stiff resistance that the Ukrainian troops are giving to the Russians on the ground. And the latest visuals are that of the Bayraktar drone that is being used by the Ukrainian military, and also aggressive attack by Ukrainians as well. On that note, Piyush Mishra also joins us on the broadcast. He's been on the ground tracking all the developments. Piyush, where are you right now? And we have heard several reports that Russian troops are encircling Kiev. A final blow is what they're planning, Piyush. Absolutely, Priyanka, like you rightly mentioned that yes, our final blow is being planned by Russian troops. What we are learning is that it is very much near to Kiev. We have seen earlier as to how Russia has been claiming that they have taken on the cities like Kharkiv and others, but it was the Ukrainian army which always made it clear that they are the one who are still there. But right now, what we are now learning is that Russian troops are very much near the Kiev. Around 25 kilometers is the area which is only left. And the city, the capital city of Ukraine, has been completely surrounded by the Russian army. Right now, we are here at the border area. We are en route to Mazir. Remember that Mazir is the place from where Ovruch is not very far, only 30 kilometers from that particular area. I would like to show you the roads also connecting towards the border area. These are the border areas from where we are now following this report. Remember that the temperature is also in minus degrees here in these border areas. So only 45 kilometers are left. We are on our way towards the Mazir area, and from there we will be trying to we will try to get more and more pictures. Last time when we had gone there at the border areas, we had seen the Russian troops there. Remember that Belarus was denying the fact that Russia is not here at its territory, and Belarus is not in the war. But Republic TV has got those pictures in which we saw the Russian troops there at the Belarusian soil. Yesterday, there was a meeting also which took place between Belarus and Russia. Belarusian president had said that Ukraine was in fact planning in advance to attack Belarus, but because of Russia, the attack got averted. And this had come at a time when China had also backed the Russian army's claims. Biochemical bomb claims. We'll have to wait and watch how things are going to further escalate. Yesterday in its statement, Russia and Ukraine had also suggested. We can also see, yes, right behind me, Republic is showing you Russian army convoy. You can see Russian army convoy. There are the border areas. These are pictures which we are showing. You can see that V mark is there. We are exclusively showing you these pictures from the border area. At the Belarusian soil, it is for the first time we are telling to our viewers that this convoy can be clearly seen on the television screens. V is there. We can clearly see while we were reporting, we have seen now this V mark there at the front of all the trucks. So they're now passing by from there. You can see we are showing you the convoy of this Russian army which is now passing by from here. Republic has exclusively shown you these pictures where Russian army convoy could be clearly seen. The border Mazir area is just 45 kilometers from here, and while we were reporting, we exclusively showed these pictures from the Belarus-Ukraine border. We are not very far. We are only 45 kilometers. We are telling once again to our viewers that we are only 45 kilometers from that particular area where
reportedly the war is going on where the Russian army has crossed into the Ukraine. This is what the Ukrainian armed forces are also claiming. So while we were doing this live reportage, we just saw the convoy of Russian army which passed from this border area, and now from here, Priyanka, we will move ahead. We'll move ahead from here and we'll try to show more and more pictures. अभी वो तस्वीरें हमने देखी किस तरह से रशियन आर्मी का कॉन्वॉय यहाँ से गुजरा। ठीक 40 किलोमीटर का फासला और बचा है। हम काफी नजदीक हैं माजिर के। आपको बता दें, माजिर वो इलाका है जहाँ से ओवरूच जो यूक्रेन का इलाका है जहाँ पर बॉम्बार्डिंग हो रही है, वो सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर है और हम माजिर से सिर्फ 40 किलोमीटर की दूरी पर है। और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ही ऐसे नेटवर्क है जो इतने करीब जहाँ पहुंचा है। हमने वो तस्वीरें दिखाई जहां पर रशियन आर्मी का कॉन्वॉय अभी यहां से गुजरा। बेहद हम नजदीक हैं। ये वो कॉन्वॉय जो है यहां से गुजरते हुए जाता है। इनका यहां से पेट्रोल और जो डीजल जो है उनको भरने के लिए वापस ये कॉन्वॉय कुछ में वापस भी आएगा, क्योंकि यही रास्ता जो है बॉर्डर की तरफ जाता है। जब हम अभी कुछ देर पहले दर्शकों को बता रहे थे किस तरह से बेलारूस का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अब जो है इस पूरे लड़ाई में निकल के सामने आ चुका है। बेलारूस की कल बातचीत हुई, बेलारूस के राष्ट्रपति की कल बातचीत हुई रशिया के राष्ट्रपति से, जिसमें लुकाशेंको ने यह बात कही कि यूक्रेन जो है वो बहुत पहले से ही हमला करने की साजिश कर रहा था बेलारूस पे, लेकिन रशिया की वजह से वो गया। आपको बता दें कि बेलारूस में ही 3 राउंड की टॉक्स हुई है, लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं निकला। इसके बाद टर्की में बातचीत हुई, लेकिन उसका भी कोई नतीजा निकलकर सामने नहीं आया। उसके बाद अब खबर ये आ रही है कि बेलारूस जो है अब इस पूरी लड़ाई में कूद चुका है। हमने तस्वीरें भी दिखाई, रशियन आर्मी का कॉन्वॉय अभी यहां से निकला है। देखने होगा कि किस तरह से चीजें आगे और एस्केलेट होती हैं। लेकिन इस वक्त हम आपको बता दें कि -डिग्री का तापमान है यहाँ पर। यहाँ से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ से माजिर है और माजिर से बेहद नजदीक ओवरूच है जहां पर बॉम्बार्डिंग हुई है। रशियन आर्मी का नॉर्दर्न एक्सिस जो है वो यहीं से ही है और यहाँ से पूरी तरह से एक्सेस जो है बेलारूस रशियन ट्रूप्स को दे रहा है। इस बात की पुष्टि हो चुकी है क्योंकि हमने अभी कॉन्वॉय भी देखा और ये तस्वीर पहली बार नहीं, इससे पहले भी हम देख चुके हैं। प्रियंका जी बिल्कुल पीयूष, we are seeing those visuals behind you and that's a great catch Piyush. We have just shown the exclusive visuals of the Russian troops, but take us through what's exactly happening from the Belarus side. Are these movement happening from Belarus towards Ukraine? वेल प्रियंका, इट सीम्स लाइक बिल्कुल ऐसा लगता है, बिल्कुल ऐसा ही लगता है प्रियंका कि बेलारूस जो है वो पूरी तरह से एक्सेस जो है रशिया को दिया हुआ है और रशियन आर्मी जो है बेलारूस के बॉर्डर से होते हुए यूक्रेन में घुस रही है। एक तरफ रशिया का यह भी दावा है कि 30% जो जगह है यूक्रेन की जो जमीन है वो उसके कब्जे में है, लेकिन यूक्रेन जो है उसको बार बार मना भी करता रहा है। यूक्रेन ये गुहार लगाता रहा है नेटो से और दूसरी कंट्री से कि वो मदद करें, वो नो फ्लाई जोन घोषित करें, लेकिन नेटो ने अब तक उसको नो फ्लाई जोन घोषित नहीं किया है। अगर हम बेलारूस की बात करें, बेलारूस से बिल्कुल पास में खार्किव भी है। आपको बता दें कि खार्किव एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है, कैपिटल सिटी मानी जाती है, इकोनॉमिक सिटी मानी जाती है यूक्रेन की। वहां पर भी हमने किस तरह से देखा कि बॉम्बार्डिंग बेहद गंभीर तरीके से हुई। वहां पर किस तरह से बम गिरे, वहां पर मिसाइल्स गिरी, काफी लोग परेशान है। लगभग 2 मिलियन से ज्यादा लोग यूक्रेन छोड़कर जा चुके हैं। ये बात जो है यूक्रेन जो है लगातार नेटो से कहते रहा है कि नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया जाए। और बेलारूस की बॉर्डर की अगर हम बात करें तो वहां से बेहद नजदीक कीव भी है और बाकी सिटीज जो है यूक्रेन की वो पड़ती हैं। तो जो आरोप शुरू से यूक्रेन लगाता रहा है उसमें कहीं ना कहीं अब सच्चाई निकलकर सामने जरूर आ रही है कि हाँ, बेलारूस जो है वो रशिया को पूरी तरह से मदद करता रहा है। कल बातचीत हुई दोनों देशों की मॉस्को में, जहां पर बेलारूस के जो राष्ट्रपति है वो वहां पहुंचे। कुछ तस्वीर और हम लगातार आपको तस्वीरें दिखाते रहेंगे। ये वही रोड है जो 40 से 45 किलोमीटर दूर अगर हम आगे और बढ़े तो माजिर एक शहर है वो आता है, वो आखिरी शहर है बेलारूस की सरजमीन का। उसके बाद जो है लगभग 30 किलोमीटर आगे जाएं तो वहां पूरा इलाका जो है बंद है और उसके बाद ओवरूच आता है और ओवरूच में ही बॉम्बार्डिंग हुई। देखना ये होगा कि किस तरह
तरह से चीजें और आगे लगातार बढ़ती जाएगी। लेकिन हाँ, अभी कुछ देर पहले जब हम लाइव रिपोर्ट प्रियंका से फाइल कर रहे थे तो हमने देखा कि किस तरह से रशियन आर्मी के ट्रूप्स यहां से निकले। लगभग 20 से 25 वो ट्रक्स थे जो यहां से निकले। हो सकता है कि आगे और भी डिप्लॉयमेंट जो है वो रशियन आर्मी की हो। हम यहां से कुछ देर में आगे बढ़ेंगे और अपने दर्शकों को और तस्वीरें दिखाएंगे, क्योंकि अब जो है दोनों कंट्रीज जो रशिया और बेलारूस जो है दोनों एक प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। इकोनॉमिक सैंक्शंस की बात करें तो ना सिर्फ रशिया पे भी है, बेलारूस में भी है। बैंक्स, कई सारे बैंक्स जो है वो ऑपरेट करना बंद कर चुके हैं। इस वजह से हमको भी खासा दिक्कत जो है फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि कैश निकालने में, लोगों को पेमेंट्स करने में भी काफी परेशानियां हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो अमेरिकन कंपनीज हैं, यूके कंपनीज हैं, वो अब रशिया में अपना काम धीरे धीरे बंद कर रही है। और ये एक बड़ा कंसर्न जो है दोनों देशों के लिए, इसको लेकर कल चर्चा भी हुई। कल बेलारूस ने यह भी कहा रशिया से कि यूक्रेन एक बड़ा अटैक प्लान कर रहा था। और कल यूक्रेन आर्मी का भी एक बड़ा दावा था कि बेलारूस आर्मी कभी भी जो है यूक्रेन के अंदर घुस सकती है। एक स्टेटमेंट भी जारी किया गया था यूक्रेन आर्मी के द्वारा कि एक गांव है जो बेहद नजदीक है, माजिर से ही आगे रिवाइन रीजन के पास में, उस गांव पे भी अटैक किया है बेलारूस की आर्मी ने। तो कहीं ना कहीं यूक्रेन अब ये मानकर चल रहा है पूरी तरह से कि न सिर्फ रशिया बल्कि बेलारूस भी यूक्रेन की जमीन पर हमला कर रहा है। और चारों तरफ से इस वक्त यूक्रेन को घेर लिया गया। वो खार्किव हो, रशियन ट्रूप्स पहुंच चुके हैं। जो खबर अभी मिल रही है, लगभग 25 किलोमीटर के दायरे में इस वक्त रशियन ट्रूप्स मौजूद हैं कीव में। बातचीत अभी जो है, जो 4 दौर की बातचीत हो चुकी है, उसका नतीजा कोई निकल कर नहीं आया। और लगातार जो है इस तरह की खबरें आ रही है कि किस तरह से यूक्रेन पर हमला रशिया का बढ़ता जा रहा है। प्रियंका। Piyush, the visuals that you have just got us has exposed the face of Belarus, because we had seen 3 rounds of talks being held there, and Ukraine in good faith had trusted Belarus and had gone there to meet their Russian officials. But clearly here, Belarus playing spoil sport, and you can see their mask has been lifted here, with them equally taking part in the visuals. Just speak 1,000 words, Piyush. ये बात किसी से छुपी नहीं है क्रिस्पिनो कि अब बेलारूस जो है पूरी तरह से इस वॉर में आ चुका है। ये बात बिल्कुल भी छुपी नहीं है। बेलारूस की सरजमीन से रशियन ट्रूप्स ऑपरेट कर रही हैं, ये बात भी किसी से छुपी नहीं है। अभी हमने वो तस्वीरें भी दिखाई। अगर हम बेलारूस की बात करें, आपको बता दें कि 1991 में जब यूएसएसआर का खंड हुआ था, उस वक्त बेलारूस एक इंडिपेंडेंट कंट्री थी। लेकिन उसके बाद से ही बेलारूस और रशिया के संबंध काफी मजबूत रहे। कुछ ऐसा समय भी आया जब बेलारूस ने वेस्ट की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन उधर से उसको ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला। और उसके बाद से बेलारूस और रशिया हमेशा से ही हर एक प्लेटफॉर्म पे साथ रहे। 2020 की मैं आपको बात बताऊं, जब यहाँ पे इलेक्शंस हुए थे, उस वक्त जो है लोगों ने उन इलेक्शंस का विरोध किया था, जो रिजल्ट है उसका विरोध किया था। और उस विरोध को दबाने के लिए, उस प्रोटेस्ट को दबाने के लिए रशिया ने सपोर्ट भी किया था बेलारूस को, कहा था कि अगर तुम्हें हम किसी तरह की कोई मदद चाहिए तो हम सपोर्ट करने के लिए तैयार है। ये बात भी उस वक्त रशिया ने कही थी। उसी के एवज में अब दिख रहा है किस तरह से बेलारूस पूरी तरह से रशिया के साथ खड़ा है। कल मुलाकात हुई रशिया के राष्ट्रपति से, बेलारूसियन राष्ट्रपति की, लुकाशेंको की, जिसमें उन्होंने ये साफ कहा कि यूक्रेन जो है पूरी तैयारी कर रहा था बेलारूस पे हमला करने की। अभी तक यूक्रेन का ये कहना है कि उसने यूक्रेन किसी तरह से भी बेलारूस की तरफ नहीं बढ़ा है। एक भी हमला जो है यूक्रेन की तरफ से बेलारूस की सॉइल पर नहीं किया गया है। लेकिन यूक्रेन अब जो बेलारूस अब जो है वो यूक्रेन की तरफ बढ़ रहा है। और यूक्रेन का यह भी कहना है कि एक हमला जो है बेलारूस की तरफ से यूक्रेन की सरजमीन पे किया गया है। ये बात यूक्रेन की तरफ से कही गई है। दूसरी तरफ रशिया लगातार ये बात कहता रहा है कि यूक्रेन जो है वो क्रीमिया जो इलाका है उसको रशियन टेरिटरी मान ले, रशिया की जमीन मान ले। साथ साथ रशिया ये भी कहता रहा है कि डोनबास रीजन जो है वो इंडिपेंडेंट, उसको स्वतंत्र तौर पर भी रिकॉग्नाइज कर ले यूक्रेन। और साथ साथ अपने संविधान को बदल कर ये कह दे कि वो किसी तरह के कोई ग्रुप को ज्वाइन नहीं करेगा, ना किसी तरह के कोई ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करेगा। ये बात जो है रशिया ने यूक्रेन से कही। तीन दौरों की बातचीत हो चुकी है, लेकिन उस बातचीत में किसी तरह का कोई नतीजा निकलकर सामने नहीं आया क्रिस्पिनो। चौथी राउंड जो टॉक्स हुई थी वो टर्की में हुई थी। 3 राउंड की जो टॉक्स हुई थी वो बेलारूस में हुई थी। टर्की में भी किसी तरह का कोई निकलकर समाधान नहीं सामने आया। इस वक्त हम महज 40 किलोमीटर की दूरी पर हैं बॉर्डर एरिया से। हम आगे बढ़ेंगे और तस्वीरें दिखाएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क।